Hello students, welcome to your own channel, that is Yachna Science Classes. How are you all? And first of all, I want to feel sorry that due to technical problem the video was paused yesterday, and however the topic was completed. One thing was left, that what are the disadvantages of cross pollination, and what are the disadvantages of cross pollination, that it is not economical. A lot of energy is wasted in cross pollination, and a special agency is required for it. इसके लिए कोई एक स्पेशल एजेंसी चाहिए है, इसीलिए भी क्रॉस पॉलिनेशन को हम अच्छा नहीं मानते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक विच वाज वी डिस्कस्ड यस्टरडे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. जनरली क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. एंड व्हाट इज आवर टुडेज टॉपिक? Today's topic is outbreeding devices and pollen pistil interaction. Outbreeding devices and pollen pistil interactions. As we know that majority of plants have bisexual flower. I am using one term, that bisexual. Bi means two, sexual means sex. The flower which has both sex means stamen as well as pistil, जिसके अंदर दोनों ही चीज़ें हों, उसको bisexual flower बोला जाता है. और its another name is monoecious. Another name is monoecious. Mono means single, कि single organism have single sex, कि single flower have single either stamen or pistil. Or it is also known as hermaphrodite. Hermaphrodite is also that organism, that flower which have both sex, stamen as well as pistil. So what happen? Majority of flowers are bisexual. Bisexual है, उनके पास स्टिग्मा भी है, you can say pistil भी है और stamen भी है. तो उसी का पोलन ग्रेन उसी स्टिग्मा पे आकर पोलिनेट कर देता है, दूसरे फ्लावर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. सो इससे क्या होता है कि हमारी प्रोजेनी वीकर होती चली जाती है, मीन सेल्फ पोलिनेशन होता चला जाता है, जिसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच यू हैव टू रिमेंबर, इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन इट मीन्स फ्लावर डिप्रेशन में चला गया, प्लांट डिप्रेशन में चला गया. किस तरह का डिप्रेशन? इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन मीन्स कि सेम स्पीशीज सेम फ्लावर के अंदर बार बार पोलिनेशन हुआ जा रहा है, वहीं पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इससे प्रोजेनी वीक होती चली जाती है. एज वी आर डिस्कस यस्टरडे ऑल्सो कि इट इज़ डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन इन विच same pollen from the anther land on the same stigma, due to which inbreeding depression takes place. For the solution of this problem, for solution of inbreeding depression, plant has some outbreeding devices. Some plant have developed some outbreeding devices, due to which they will encourage cross pollination and discourage self pollination. Remember the line, that they will encourage cross pollination and discourage self pollination. So what are these outbreeding devices? Total 6 outbreeding devices I have written on the board, and I do this thing that I firstly I write the thing and then I explain why I do this. To conserve the time, to save the time, कि इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है. So that's why I do this. So 6 total devices are there which I have written. First one is dicliny. Second one is dichogamy. Third, self-sterility or incompatibility. Fourth, heterostyly. Fifth, hercogamy. And sixth is prepotency. So one by one I will discuss them, that what are these. First one is the dicliny. Dicliny means production of unisexual flowers. What happens? Some plants, what they do, they produce unisexual flower. Uni means single sex, means either the flower will be staminate, means only stamen will be there, or the flower will be pistillate, means pistil will be there. So I have drawn the diagram that this flower is known as which flower? Pistillate flower. Means it has only pistil or carpel, only female part is there. It is unisexual flower, जिसके पास only female part है या फिर male part है. Second flower I have drawn, this is staminate flower, जिसके पास सिर्फ stamen है, only male part है. So some plants do this thing कि वो unisexual flower ही produce करते हैं, या तो pistillate या फिर staminate. इससे क्या होगा? इससे सेल्फ पोलिनेशन को वो प्रिवेंट करेंगे, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होने देंगे. सो व्हाट विल हैपन? दिस इज द केस ऑफ पपाया. ऐसा किसके अंदर होता है? पपाया के अंदर होता है.
मेज के अंदर भी होता है, कैस्टर के अंदर भी होता है, जिनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। इन केस ऑफ मेज एंड कैस्टर both flowers male as well as female both flowers are on the same plant, एक ही प्लांट पे होते हैं। सो इट प्रिवेंट ऑटोगैमी, ऑटोगैमी तो होगी नहीं, सेम फ्लावर का पोलन सेम स्टिग्मा पे जा नहीं सकता, बट जिटोनोगैमी तो होगी वहाँ पे। इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी। व्हाट हैपन इन जिटोनोगैमी, एक फ्लावर के पोलन से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाता है, बट दोनों ही क्या होते हैं, सेम प्लांट के होते हैं, ठीक है, ये होता है जिटोनोगैमी। तो ऐसा कैस्टर और मेज के केस में होता है। किसके केस में, मेज और कैस्टर, जिसके केस में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर सेम प्लांट पे होते हैं, तो एक मेल से फीमेल तक पहुंच जाता है। बट इन केस ऑफ पपाया व्हाट हैपन्स, प्लांट भी डिफरेंट है, फ्लावर भी डिफरेंट है, तो इट प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी as well as geitonogamy. So this type of question can be asked that justify this statement in case of papaya flowers prevent or flower has adaptation to prevent both autogamy as well as geitonogamy. So you can explain it properly, I told you. So dichline is first outbreeding device, second one is dichogamy. Second one is dichogamy. What happens in dichogamy, क्या होता है कि प्लांट के अंदर मेल जो पार्ट होता है या तो वो पहले मैच्योर हो जाता है या फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है। मीन्स ईदर पोलन रिलीज बिफोर स्टिग्मा रिसेप्टिव, स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले ही पोलन रिलीज हो जाता है, या स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाती है, पोलन बाद में रिलीज होता है। सो इट इज ऑफ टू टाइप्स, प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी। एंड्री वर्ड एंड्रोशियम के लिए यूज हो रहा है, मेल पार्ट के लिए। गाइनी वर्ड गाइनोशियम के लिए यूज हो रहा है, फीमेल पार्ट के लिए। ओके, प्रोटो मीन्स पहले। व्हाट हैपन्स इन प्रोटेंड्री कंडीशन, मेल पार्ट और स्टेमन मैच्योर अर्लियर देन पिस्टिल और कार्पल। इट मीन्स पोलन रिलीज अर्लियर, पोलन पहले रिलीज हो जाते हैं, किससे, स्टिग्मा रिसेप्टिव होने से पहले। पोलन रिलीज हो गया, स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हुई है, तो फिर वो पोलन वहाँ पे लैंड नहीं कर पाएंगे, उसको पोलिनेट नहीं कर पाएंगे। किस केस में, प्रोटेंड्री केस में। इससे हमने क्या किया, डिस्करेज कर दिया ना सेल्फ पोलिनेशन को। सो इट हैपन्स इन केस ऑफ रोज एंड साल्विया, ये एग्जाम्पल है जिसके अंदर ये होता है। सेकेंड वन इज प्रोटोगाइनी। व्हाट हैपन्स इन प्रोटोगाइनी, पिस्टिल अर्लियर मैच्योर, पिस्टिल पहले मैच्योर हो जाती है देन स्टेमन, और यू कैन से स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, स्टिग्मा तो रिसेप्टिव हो गए, वो रेडी हो गए कि पोलन आएगा, बट पोलन रिलीज नहीं होता है, वो लेट रिलीज होता है, तो पोलन नहीं पहुंच पाता है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज प्रोटोगाइनी। एग्जाम्पल इज मिराबिलिस, मिराबिलिस ज़ेलेपा इसका पूरा नाम है, तो मिराबिलिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोगाइनी कंडीशन। थर्ड आउटब्रीडिंग डिवाइस इज सेल्फ स्टेरिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन 1 मार्क्स ऑल्सो, इसको 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, इससे अलग से अगर क्वेश्चन बनाया जाएगा तो सेल्फ स्टेरिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी का मीनिंग है कि उसी प्लांट का पोलन, उसी फ्लावर का पोलन उसी को पोलिनेट करने में अनसक्सेसफुल होता है, वो उसको कर नहीं पाता है, एबल नहीं होता है, कैपेबल नहीं होता है। सो व्हाट हैपन, प्रिवेंट सेल्फ पोलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग ओव्यूल, अपने ही पोलन को ओव्यूल फर्टिलाइज नहीं करने देता है, ओव्यूल पोलिनेट नहीं करने देता है। तो ये कंडीशन होती है सेल्फ स्टेरिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी। तो इस केस में क्या होगा, वो किसी और को जाके करेगा, तो हो गया ना क्रॉस पोलिनेशन, वही तो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें इट एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन बट डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन। फोर्थ टाइप इज हेटेरोस्टाइली। नेम इज टेलिंग दैट हेटेरो मीन्स डिफरेंट, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, स्टाइली मीन्स पोजिशन। तो हेटेरो का मीनिंग है डिफरेंट, स्टाइली का मीनिंग है पोजीशन, कि जो स्टेमन और पिस्टिल की पोजीशन होगी ना, इट विल बी वेरी डिफरेंट। मीन्स या तो स्टेमन बहुत बड़ा होगा, मीन्स स्टेमन लंबा होगा, जैसे मैं अगर इसी को एग्जांपल लेके चलूँ, मुझे दूसरा डायग्राम नहीं बनाना है, तो व्हाट आई विल डू, इस स्टेमन को मैं बहुत लंबा बना दूंगी और पिस्टिल को बना दूंगी छोटा। या फिर क्या होगा, स्टेमन तो बहुत छोटे होंगे और पिस्टिल यानी स्टिग्मा बहुत बड़ा होगा। तो इससे क्या होगा, पोजीशन इज डिफरेंट, तो पोलन प्रॉपरली लैंड नहीं कर पाएंगे किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। दिस हैपन्स इन केस ऑफ हेटेरोस्टाइली। नेक्स्ट वन इज हर्कोगैमी। व्हाट हैपन्स इन हर्कोगैमी, कि सम बैरियर्स आर देयर, नेचुरल और मे बी सम फिजिकल बैरियर्स आर देयर ड्यू टू विच पोलन डज नॉट
पोलिनेट इट्स ओन स्टिग्मा, वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा को पोलिनेट नहीं कर पाता है, सेल्फ पोलन को प्रिवेंट कर दिया जाता है। इट हैपन्स इन केस ऑफ हर्कोगैमी, इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, इट्स एग्जाम्पल इज कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि पता नहीं कौन सा प्लांट है, बट इसका अगर कॉमन नेम तुम्हें मैं बताऊं तो यू विल लर्न दैट कि तो तुमने सबने देखा है, आक, इसकी हिंदी होती है आक, AAK, आक का प्लांट सबने देखा है। वो होता है ना कि लीव्स को हम ऐसे तोड़ते हैं तो उसके अंदर से मिल्क जैसा फ्लूइड निकलने लग जाता है, एंड इट इज़ वेरी पॉइजनस प्लांट बट इट्स फ्लावर्स आर वेरी नाइस, अच्छे सुंदर से फ्लावर्स होते हैं वाइट पर्पल कलर के। ओके, दैट इज कैलोट्रोपिस, इसके अंदर हर्कोगैमी होती है। लास्ट वन इज प्रीपोटेंसी। व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ प्रीपोटेंसी, कि जो पोलन ग्रेन है ना उस फ्लावर का, वो अपने ही स्टिग्मा पर तो पोलिनेट हो नहीं पाता है, बट इट कैन पोलिनेट अनदर स्टिग्मा। तो सेल्फ पोलन नॉट एबल टू जर्मिनेट, वो उसमें जर्मिनेट नहीं हो पाता है, बट किसी और स्टिग्मा पे जाएगा ना, इट विल जर्मिनेट ईजिली। गॉट इट? सो दिस इज प्रीपोटेंसी एंड इट्स एग्जाम्पल इज, इसका एग्जाम्पल कौन है? एप्पल। इट हैपन्स इन केस ऑफ एप्पल कि एप्पल का सेल्फ पोलन उसी के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पाता है, बट इट कैन डू ऑन another apple plant of same species. Clear? So these are 6 outbreeding devices which are developed or which are, you can say that, adapted by the plant, taken by the plant to discourage self pollination and encourage cross pollination. So it is very important topic for your exam purpose, exam board exam के लिए point of view से, so you have to prepare it properly. Now next topic what we will do today is pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction. So now we'll do the topic pollen pistil interaction. So firstly I'll draw the diagram, then I'll tell you properly what are these things. These are pollen grains. ये कौन है? pollen grains। और इनकी वॉल मैं कैसी बना रही हूँ? रफ वॉल आई एम ड्रॉइंग बिकॉज आउटर वॉल इज एक्साइन, जो कैसी होती है? रफली इन सरफेस। सो सबसे पहले ये ओवरी है, ओवरी के अंदर आई एम ड्रॉइंग दिस एम्ब्रियो सैक, दिस इज एम्ब्रियो सैक। इट्स अनदर नेम इज, व्हाट इज इट्स अनदर नेम? इट्स अनदर नेम इज फीमेल गेमेटोफाइट, another name is female gametophyte. So this pollen grain is trying to make pollen tube. Next pollen grain is successful in making the pollen tube. Okay, so what are the structure? इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है? ये एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ दिस इज न्यूसेलस, इट इज न्यूसेलस। ओके, ये इस तरह से इसमें इंटेग्यूमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। सो दिस पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा, दिस पार्ट इज नोन एज स्टाइल, एंड दिस वन इज ओवरी। ओके, ovary, and this part is pollen which is germinating on stigma. This is pollen tube, this is embryo sac, and inside embryo sac ये कौन सी cells हैं? तीनों ऊपर वाली antipodal cells. These are antipodal cells, and this one is central cell, as we have discussed earlier the diagram of embryo sac, and these are synergids. ये कौन है? These are synergids, and upper one is our egg. ये कौन है? Egg. Okay, so this is the structure of pollen germination on stigma. Stigma पर pollen कैसे germinate कर रहा है? So what happens when pollen land on stigma? जब pollen stigma के ऊपर land होता है, it try to make
पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब कैसे बनती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का हमने स्ट्रक्चर किया था, दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। इस तरह से स्ट्रक्चर था पोलन ग्रेन का, like this, and I told you that at some places exine is absent and these places are known as jump pore। ये हमने बात की थी, ऐसी places का क्या नाम होता है? jump pore नाम होता है। एंड इसके अंदर कितनी सेल होती हैं? 2 सेल थी, एक का नाम क्या था? जनरेटिव सेल एंड अनदर नेम वॉज वेजिटेटिव सेल। दूसरी कौन सी थी? वेजिटेटिव सेल थी। वेजिटेटिव सेल वॉज बिगर एंड जनरेटिव सेल वॉज स्मॉलर। सो व्हाट हैपन्स, ये पोलन ट्यूब बनती कैसे है? जो ये जहाँ पर जर्म पोर है, जहाँ पर जर्म पोर है वहाँ से ये पोलन ट्यूब बननी शुरू हो जाती है, वहाँ से पोलन ट्यूब बननी शुरू हो जाती है। एंड दिस वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड दिस वेजिटेटिव साइटोप्लाज्म मूव इनसाइड दिस पोलन ट्यूब, इसके अंदर फ्लोट करने लग जाता है, बहने लग जाता है। और जो ये जनरेटिव सेल थी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर की जो जनरेटिव सेल है इट फ्लोट्स इन वेजिटेटिव सेल, ये बहुत छोटी होती है और वेजिटेटिव सेल में फ्लोट कर रही होती है। तो ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस भी और या पूरी जनरेटिव सेल भी किसके अंदर फ्लोट करने, जब बहने लग जाती है, किसके अंदर? पोलन ट्यूब के अंदर। एंड आई टोल्ड यू अर्लियर कि सम पोलन शेड एट 2 सेल्ड स्टेज एंड ओनली 40% पोलन ग्रेन्स आर देयर विच शेड एट 3 सेल्ड स्टेज। ठीक है, अब यहाँ तो 2 सेल है, तीसरी कहाँ से आई थी? व्हेन जनरेटिव सेल न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली, जब वो माइटोटिकली डिवाइड करता है तो व्हाट हैपन्स, 2 मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। क्या होते हैं? 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पोलन ग्रेन जिनमें सिर्फ 2 सेल हैं, वो विच शेड एट 2 सेल स्टेज, तो उनमें जब पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही होती है ना, वहीं पे जनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट्स बना देती है। बट व्हाट हैपन इन केस ऑफ 3 सेल, ऑलरेडी 3 सेल है तो उसको माइटोटिक करने की जरूरत क्या है? माइटोसिस करने की जरूरत क्या है? तो ऑलरेडी उसके अंदर 2 मेल गैमेट बने हुए हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ट्यूब, दिस पोलन ग्रेन। नाउ पोलन ग्रेन अब इस पे लैंड हो जाता है और इसके अंदर क्या क्या आ रहा है? 2 तो आ रहे हैं मेल गैमेट और एक आ रहा है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस ये सारा भी तो इसके अंदर फ्लो कर रहा है और 2 आ रहे हैं मेल गैमेट। तो ये कहाँ से एंट्री करती है? पोलन ट्यूब कहाँ से एंट्री करती है? माइक्रोपाइलर एंड से। कहाँ से एंटर करती है? माइक्रोपाइलर एंड से। अच्छा, अब हो क्या रहा है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। जब भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर लैंड करता है, अब जरूरी तो नहीं है कि वो राइट पोलन हो। जैसे जब भी पोलन ट्यूब आता है, पोलन इसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आता है, तो पोलन ग्रेन कैन बी ऑफ 2 टाइप। एक तो होता है राइट टाइप पोलन ग्रेन और एक होता है रोंग टाइप पोलन ग्रेन। रोंग टाइप को हम बोल देते हैं इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन। क्या बोल देते हैं? इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन। और राइट पोलन ग्रेन को बोल देते हैं कंपैटिबल पोलन ग्रेन। गॉट इट? तो कंपैटिबल पोलन ग्रेन जो राइट पोलन है, जिसको आना चाहिए था, इनकम्पैटिबल जिसको नहीं आना चाहिए था, पोलन जिसको रिजेक्ट करेगी। तो व्हाट हैपन्स व्हेन राइट पोलन ग्रेन कम ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो जाते हैं। पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर लैंड होते हैं तो 2 टाइप के होते हैं। कंपैटिबल होगा तो स्टिग्मा विल एक्सेप्ट इट, स्टिग्मा accept it, but if it is incompatible type then stigma reject it। स्टिग्मा इसको क्या कर देगी? रिजेक्ट कर देगी। तो अब वो कैसे पता चलता है कि किसको एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है? तो देयर इज अ डायलॉग, देयर इज अ कम्युनिकेशन। किसके बीच में? बिटवीन पोलन ग्रेन एंड दिस ओवरी और स्टिग्मा। स्टिग्मा और पोलन ग्रेन के अंदर एक डायलॉग होता है, कम्युनिकेशन होती है, बातें चलती रहती है। किसकी फॉर्म में? केमिकल की फॉर्म में। पोलन करेगा मैं आऊं, बट स्टिग्मा कहेगी नो, अगर ये इनकम्पैटिबल है, राइट टाइप का पोलन नहीं है। फिर पोलन बोलेगा मैं आऊं, तो स्टिग्मा को लगेगा या इट इज ऑफ सेम स्पीशीज, इट इज ऑफ राइट टाइप, इट इज ऑफ कंपैटिबल टाइप, तो स्टिग्मा विल एक्सेप्ट इट। जैसे ही स्टिग्मा एक्सेप्ट करेगी तो पोलन ट्यूब बननी शुरू हो जाएगी। एंड इन पोलन ट्यूब 1 वेजिटेटिव न्यूक्लियस विल बी देयर, 2 मेल गैमेट विल बी देयर, और वो इस तरह से पोलन ट्यूब बनाएंगे। Now I will make the structure of this lower part or ovary part in zoom वे में मैं इसको ड्रॉ करके तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। So I can rough this part also। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर तुम्हें सबको आता है। I told you
earlier and today also. So I'll draw this part structure. Now see, this is the structure of lower part, or you can say this is the structure of this embryo sac. ये किसका structure बनाया मैंने? Embryo sac का structure बनाया है. Okay, and this is our central cell. These are synergids. Okay, now see, this is central cell. Okay, this is the structure of what? Embryo sac. ये किसका structure है? Embryo sac का structure है. Now our egg cell come here. हमारी एग सेल जो है, एग जो फीमेल गैमेट है वो यहाँ आ गया है. एंड दिस इज व्हाट? पोलन ट्यूब. ये क्या है? पोलन ट्यूब. ये दोनों ही क्या है? मेल गैमेट. ओके, एंड ये वाला क्या है? वेजिटेटिव सेल और वेजिटेटिव न्यूक्लियस. ये क्या है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस है. ये पोलन ट्यूब है. अच्छा, ये स्ट्रक्चर क्या है भाई? दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ filiform apparatus. It is the structure of filiform apparatus. Okay, and these are what? Synergids. ये कौन है? Synergids है. Okay, what happens now? अब पोलन ट्यूब यहाँ तक, ओवरी तक तो आ गई है. ठीक है, ओवरी तक तो आ गई है पोलन ट्यूब. अब एम्ब्रियो सैक में इसको कैसे एंटर करना है? How it will enter in embryo sac? Pollen tube is carrying 2 male gamete and 1 vegetative nucleus. Filiform apparatus cellular thickenings are there, as I told you earlier in previous class कि what filiform apparatus do? It is present in synergid. It guide the pollen tube. ये pollen tube को guide करते हैं कि उसको कहाँ और कैसे entry करनी है. तो when this will guide the pollen tube will enter in the synergid, one of the two synergid. दोनों में से किसी एक synergid में enter करती है, जो मेल गैमेट कैरी कर रही है और वेजिटेटिव सेल कैरी कर रही है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस कैरी कर रही है. ओके, यहाँ तक आ गई है पोलन ट्यूब. नाउ व्हाट विल हैपन? लेट मी ड्रॉ नेक्स्ट स्ट्रक्चर. This is the again structure of what? It is the structure of embryo sac, and then synergids are there. Okay, and these are here one synergid. एंड अब ये सेकेंड वाली सिनर्जिड में क्या आ चुकी है? ये पोलन ट्यूब आ चुकी है. क्या आ चुकी है? पोलन ट्यूब. ठीक है, यहाँ पे ये फिलिफॉर्म अपार्ट है जिन्होंने इसको गाइड किया है. सो दिस वाज आवर सेंट्रल सेल, एंड इसमें ये 1 मेल गैमेट था, जो यहाँ था मेल गैमेट, यहाँ से वो यहाँ पहुँच गया है. ठीक है, एक मेल गैमेट हम बना देंगे यहाँ पे. Now what happens? See, this is the pollen tube. ये कौन है? Pollen tube. It come towards synergid with the help of filiform apparatus. Filiform apparatus इसको guide करती है, and it discharge its contents. Discharge its contents means 2 male gamete हैं. 1 male gamete in the synergid near the egg. 1 male gamete in synergid near the egg. Second male gamete is here, which will go to the central cell, and it will fuse with central cell and make polar nuclei. Okay, what happens? See again, pollen tube is entry is there in filiform apparatus in synergid. It will discharge its contents here in the synergid. 1 male gamete go towards the egg for fertilization for syngamy. Another male gamete will go towards the central cell for again fusion, and this central cell have 2 nuclei and 1 male gamete nuclei. 3 nuclei will be there, and there will be triple fusion. यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रिपल फ्यूजन. और यहाँ पे हो रहा है सिंपल फ्यूजन, सिंपल सिनगैमी. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्चार्ज ऑफ पोलन ट्यूब. यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्चार्ज बाय पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब डिस्चार्ज कर रही है अपने कंटेंट्स को किसके अंदर? सिनर्जिड्स के अंदर वो
अपने कंटेंट को डिस्चार्ज कर रही है. सो दिस इज द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन. अब फाइनली व्हाट यू विल राइट इट्स डेफिनेशन. अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन तो बताओगे ना कि क्या कम्युनिकेशन हो रही है, ये है क्या चीज. सो व्हाट यू विल राइट दैट होल इवेंट्स, ऑल इवेंट्स, सभी इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, जैसे ही पोलन स्टिग्मा पे डिपॉजिट होते हैं वहां से लेके एंड सेंडिंग मेल गैमेट्स टुवर्ड्स दी ओव्यूल, ओव्यूल तक जाने तक के सारे इवेंट्स जो हो रहे हैं, ऑल दीज इवेंट्स आर नोन एज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन. की पोलन और पिस्टिल के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, बातें हो रही हैं, डायलॉग हो रहा है, इंटरेक्शन हो रही है, दैट इज नोन एज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन. सो आई टोल्ड यू दैट जो पोलन ट्यूब एंटर करेगी वो किधर से एंटर करेगी? माइक्रोपाइलर एंड से. बट इट इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी कि हमेशा ही वो माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करती है. जब वो माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करती है तो उस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम पोरोगैमिक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पोरोगैमी. बट इफ इट एंटर टुवर्ड्स कैलेजल एंड और चेलाजल एंड तो उसको बोलते हैं चेलाजोगैमी. क्या बोलते हैं? चेलाजोगैमी. सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जाम in 3 marks. It is very important and always I say you that this time is your revision time, it is not your syllabus completion time. So I cover only those topics which are exam oriented, which always comes in your exams. Previous years में जो आए हैं I discuss only those topics which comes in exams. Very important these topics are, so you have to prepare them properly. So tomorrow what we will discuss? We will discuss the double fertilization. हम यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं, कल हम इसकी fertilization करवाएंगे और seed बनाएंगे. Is it clear to everybody? So I think today's lecture was very impressive and you are able to understand the things clearly. So if you have any doubt, you can ask me, you can comment me to ask your doubt. I will clear them as soon as possible. So thank you everybody.